آپ سب کی خدمت میں سبیہ زبیر کا آداب. پیش ہے ہمارا پروگرام ایسپائر ٹو انسپائر، یعنی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا. اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات دو ایسی باصلاحیت بہنوں سے کروا رہے ہیں جنہوں نے نہایت عقیدت، صبر اور فن کے ساتھ قرآن مجید کو کشیدہ کاری کے ذریعے لکھا ہے. ان دونوں بہنوں کا روحانی سفر ایک پاکیزہ خیال سے شروع ہوا تھا اور رفتہ رفتہ یہ خیال ایک ریاضت بن گیا، اور پھر ان دونوں بہنوں نے رنگ برنگے تاگوں کے ساتھ اور ٹانکوں کے ذریعے قرآن مجید کے 600 سے زائد صفحات کو کشیدہ کاری کے ذریعے لکھا اور ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا جو آج ایک مذہبی سرمایہ بن چکا ہے. تو آئیے ملیے ہمارے آج کی دو بہت ہی معزز مہمان، محترمہ سریہ قریشی اور بی بی تبسم صاحبہ. ان کی تعریف میں میں کیا کہوں، بس یہی کہوں گی کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. اور مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں بچیاں جنہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے، سر انجام دیا ہے، وہ یقیناً ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں سالہ ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران اور اراکین کی جانب سے آپ دونوں کا یہاں پر استقبال کرتی ہوں. تو سب سے پہلے تو سریہ قریشی اور بی بی تبسم ان کا نام ہے. تو سریہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن، آپ کی ابتدائی تعلیم اور پھر آپ نے تعلیم کہاں تک کے مکمل کی؟ ہمارے بچپن میں جو تعلیم، دینی تعلیم گھر سے ہی ہوئی ہے. جی. ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. جی. اب ہماری خواہش ہے کہ ہم اسکالر بنے. جی جی ہاں. یعنی اسکول یا کالج نہیں گئی آپ؟ ہاں، اسکول گئے، 10th اسٹینڈرڈ تک کمپلیٹ کیا ہم لوگوں اچھا. نے. اور تبسم آپ نے؟ الحمدللہ کالج کمپلیٹ نہیں کی، بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑ دیا؟ پڑھائی میں اتنا دھیان نہیں لگتا تھا. اچھا. مجھے آرٹ بنانا، یہ ساری چیزوں میں زیادہ خواہش مند تھی میں. اچھا، آپ کو زیادہ پسند تھا. جی جی. ہینڈ ورک یہ سب کیا کرتے تھے تو اسی میں دیر لگتا تھا میرا. اچھا. تو پھر کالج کی تعلیم آپ نے ادھوری چھوڑ دی، مکمل نہیں کی. اگر مکمل کر لیتی تو شاید زیادہ اچھا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سریہ، یہ بتائیے کہ آپ دونوں کو قرآن مجید کو کشیدہ کاری کے ذریعے لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ ہم دو بہنیں آیتیں بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دن میری چھوٹی بہن نے آ کے مجھے کہا ہم پورا مکمل قرآن بناؤں گی. وہ بنائے گی کہا اس نے مجھے. تو میں نے کہا، بہت خوشی ہوئی ایک دم سے. پھر اتنی بڑی کتاب ہے، اکیلے نہیں ہوگا تجھ سے، ہم دونوں مل کے کریں گے. پھر اتنی بڑی کتاب، زیر زبر کی کچھ غلطی ہو تو اس ڈر بہت لگا اس کا. پھر بہت سوچا ہم لوگوں نے. تو اللہ دنیا میں اتنے خیال ہیں تو اس خیال کو دینے کا اللہ کا کوئی مقصد ہوگا. ہم شروع کریں گے، اگر اللہ چاہتا ہے تو یہ مکمل ہوگا. یا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم یہ خیال سمجھ کے چھوڑ دیں گے، ہم سے نہیں ہوگا. جی جی ہاں. تو بتائیے شروعات کیسے کی؟ تحریر کس کی اچھی؟ ہینڈ رائٹنگ اس کے لیے اچھی ہونا بہت ضروری ہے. پہلے میری بہن نے اردو اسکول پڑھا تھا اس نے، تو اس کو ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی آتی تھی. جی جی ہاں. تو اس نے مدینے کا جو قرآن ہماری نانی نے لا کے دیا تھا ہمیں، اس قرآن کو دیکھ کے وہی قرآن کو اس نے کاپی کیا. 6 مہینے ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کی اس کی. 6 مہینے. اچھا. اس دوران آپ کو جو لکھ کر آپ کو کسی مولوی، ملا اور علماء سے بھی اصلاح کرنی پڑی ہوگی کہ کہیں زیر زبر اور پیش کی غلطی تو کہنے تو کی تھی کیا اس طرح سے اصلاح؟ ہاں، جو بچوں کو پڑھانے حضرت گھر آتے تھے، ڈیلی جب بھی ہمارا صفحہ مکمل ہو جاتا تو حضرت سے کریکشن. تو بتائیے کہ آپ روزانہ کیا ایک صفحہ لکھتی تھیں آپ؟ الحمدللہ شروعات میں تو بس آدھا صفحہ 5-6 لائن ہی مکمل ہو پاتے تھے، کیونکہ ہمیں بھی آتا نہیں تھا نا، مشکل ہوتی تھی. ایسا ہے نا کہ کاغذ پہ لکھنا بہت آسان ہوتا ہے، کپڑے پہ لکھنا تھوڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل. تو اس کی پریکٹس بھی کرنی پڑی بہت. 6 مہینے تو اسی پہ چلے گئے، کیونکہ لائن ٹو لائن آنا ہے، اوپر نیچے نہیں ہونا ہے. جی جی. صحیح سے کپڑے کو لکھنے سے پہلے آپ نے اس کپڑے کی دھلائی کرتے تھے؟ ہاں، اس کی دھلائی کر کے، اس کو صاف کر کے، اس کو پھر آئرن ڈال کے، پھر اس پہ لکھ کے قلم سے لکھتے. پھر اس کے بعد ہم میرا کام تھا پورا مکمل قرآن پینسل سے کپڑے پر لکھ لیتی تھی. اس کے بعد ہم 2 بہنیں مل کے اس پہ سوئی دھاگے سے کڑھائی کرتے تھے. یہ ایسا ہوتا تھا کہ پہلے پینسل سے جب لکھ دیتے تھے تو گھر میں 8 ممبر ہیں ہمارے، سبھی 8 ممبر بھی اس کی تحقیق کرتے ایک ایک لائن کی. یہ صحیح لکھا ہے کیا، کہیں زیر زبر چھوڑا ہے کیا. تو اچھا، ان کو آتا تھا اتنا زیادہ اصلاح
करना हाँ, घर के आता तमाम था। मेंबर को? हाँ हाँ। जी हाँ। तो मेरी अम्मी भी 7 साल में कुरान को खत्म किया है, हिफ्ज किया है। हिफ्ज हाँ। किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। मेरे बच्चे भी पढ़ लेते हैं। जी हाँ। और मेरी और एक बहन है, वो जो आलिमा है। जी जी तो माशाल्लाह दीनी तालीम हमारे घर में अल्लाह के काफी फजल है, करम अच्छा, से जी, जी। काफी है। हाँ हाँ। तो मेरी तमाम बहनें और मेरे बच्चे सब मिलके इसको देखते थे पहले। थे। जी जी देखते हाँ ये सही है, तमाम घर वाले मुकम्मल देखने के उन्होंने बाद तसल्ली देते, तो हम इस पे फिर कढ़ाई शुरू करते। कढ़ाई के बाद में भी 2-3 बार इसको फिर चेक किया जाता अच्छा, वो था। कढ़ाई करने के लिए रंग बिरंगे धागों का इंतखाब कौन करता था? यानी कौन से कलर से क्या लिखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखना है, तो किस तरह से किन रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर? ये कौन सेलेक्ट करता था? नहीं, हम 2 बहनें ही सेलेक्ट आप करते दोनों थे। बहनें? हम अच्छा। हमने ये अच्छा नहीं लग रहा है वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सा अच्छा लग पहले रहा है, कुछ अच्छा। लेते कलर्स, उसमें जो अच्छा लगता है उसको शुरू कर शुरू लेते। करते हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की खातून ने कुरान मजीद को लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान में, मैं समझती हूँ इंडिया में आप दोनों पहली एक आप बच्ची हैं और आप हैं, तो आप दोनों ने इसको मुकम्मल किया है। तो मैंने सुना है कि धागों को भी जो है वो धोया करती थी और बाज़ का धागों का रंग निकल जाता था, तो आप क्या करती हैं? क्या आपने क्या किया? हमने ऐसा धोया तो नहीं, धागों को नहीं क्योंकि वो धोया। कलर निकल जाता है ना। कलर निकल जाता है, जी हाँ। तो अभी बनने के बाद अगर खुदा ना खास्ता पानी गिर जाए उसके ऊपर, तो उसको बहुत हिफाजत से रखा होगा बहुत आपने? ज्यादा, ऐसा बहुत कुछ ज्यादा हिफाजत कभी से कुछ रखा बहुत नहीं ज्यादा हुआ। हिफाजत से रखा है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि दिन भर में कितने घंटे काम करती थी आप इसके ऊपर? हम तहज्जुद के बाद बैठते थे, क्योंकि रात में अकेलापन रहता तो डिस्टर्बेंस नहीं रहता नहीं था। रहता, जी हाँ। तो पूरी रात करके फजर तक होता। फजर के बाद में, फजर की नमाज के बाद में फिर इसको सुबह के 6, 6:30, 7 तक, उसके बाद घर के काम सब कुछ रहते, तो हम लोग करके फिर दिन में जब हम सो जाते हैं ज़ोहर की नमाज के बाद में, जी, जी। फिर उठ के इसकी तैयारी तैयार करते हैं। करते। तो ये दिन भर में यानी 24 घंटे में से कम आप 14-15 घंटे काम करती होंगी? हाँ, 14-12 घंटे ऐसे वक्त देते थे और हम इस लोग। तरह से कितने साल आपने लगाया इसको लिखने में? मुकम्मल 5.5 साल तो माशाल्लाह। कढ़ाई में कुरान की लगे। उससे पहले 6 महीने पहले प्रैक्टिस भी की थी अच्छा हाँ। लिखने की। 2.5 पारे पहले बनाए थे, जो हैंड राइटिंग सब कुछ, जो सिलाई सब समझने के लिए। जी जी हाँ। जब हमें लगा नहीं अब सही होगा, फिर नए तरीके से हमने वो 2.5 पारों को रख के फिर नए तरीके से इसकी शुरुआत लिखना की। शुरू किया। जी जी हाँ। तो आप उसकी तस्वीर मुझे भिजाइएगा, क्योंकि आपने कहा कि पूरा कुरान जो है 5 जिल्दों में है। अच्छा, मैंने ये सुना कि जिल्द बंदी भी, यानी उसकी बाइंडिंग भी आप लोगों ने खुद ही करवाई। हाँ। कैसे करवाई वो? हमने कुरान के सफ़े तो मुकम्मल हुए, जब 18 पारे मुकम्मल हुए तो हमने सोचा अब इसे किताब की शक्ल दें करके। बहुत जगह हम गए लेके, तो बाइंडिंग के लिए किसी ने हमें बाइंडिंग के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, अगर कुछ हो जाए तो। अच्छा, लोग डर गए थे? डर गए, नहीं कुछ हो जाए तो इतनी मेहनत जाया हो जाएगी। हाँ जी हाँ। तो हम घर पे आए, सोचा हमने कैसे करें, तो अल्लाह ने ही उसका ख्याल दिया। 2-3 बाइंडिंग सही नहीं आई, उसके बाद में जो बाइंडिंग आई, जो किताब मुकम्मल होके निकली, वो बहुत खूबसूरत लगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलवेट से उसका कवरेज किया? हाँ, वेलवेट से। अच्छा, और उसके ऊपर भी लिखना पड़ा होगा कुरान मजीद, कुरान अल करीम लिखा, कुरान अल करीम लिखा उसके ऊपर। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि ये तो काम बहुत बड़ा चैलेंज है, ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद भी एक कैलीग्राफर हूँ और मैं भी बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि 2-3 सफ़े लिखने के लिए कितने घंटे लगते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको इस काम के दौरान और कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्या क्या चैलेंज? जाहिर है माली परेशानियां हुई होंगी। किसने आपका सबसे ज्यादा साथ दिया? माली परेशानी ऐसा नहीं कि हम एक ही टाइम में सब कुछ नहीं लाए थे। जी हाँ। तो जितना जितना काम हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो हम उसकी चीजें लाते थे। हाँ जी हाँ। तो इसमें तमाम घर वालों का साथ था हमारे लिए। अच्छा हाँ। मेरी बड़ी बहन, बहनोई, मेरे शौहर, मेरी अम्मी, सबका साथ था हमें। अगर किसी को भी हम कहते थे कि ये खत्म हो गया, तो फौरन वो चीज वो लाके दे देते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो सुरैया, आपकी शादी कब हुई? कितने साल हो गए? 15 साल के थे वो। अच्छा,
अच्छा, मेरी शादी हुई जब मैं 15 साल की है। अच्छा, जब आप 15 साल की थी। और हमने ये भी सुना है कि आपके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। हाँ। बहुत, हाँ, आप लोग सब जब छोटी थी तो वालिद साहब क्या करते थे आपके? हम कुरैश खानदान से हैं। कुरैश खानदान से, अच्छा, हाँ, तो वालिद साहब भी गोश्त का ही काम करते गोश्त का ही काम करते थे। अच्छा, तो क्यों, मतलब क्या बीमार हो गए थे? हाँ, बीमार हो उनके गए थे। इंतकाल के बाद तो जाहिर बात है माली परेशानियां तो हुई होंगी। जी हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ने, आपने जैसे कहा आपकी बहन है, कितनी बहनें हैं आप? हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें, भाई एक है। एक है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने ये भी सुना है कि आपने कुरान मजीद पूरा लिखने के बाद आपने जो है अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए चादर भी बनाई है। हाँ। और वो चादर आप वहाँ पर ले गई थी, तो क्या रहा रिएक्शन लोगों का? पसंद किया गया? हाँ, बहुत पसंद किया गया। जी जी हाँ। वो तो हैरान हो गए इतना अच्छा काम देख के। वहाँ के लोग बहुत खुश हुए कुरान को देख के। अच्छा, बहुत कुरान बड़ा, लेकर गई थी? हाँ, सिर्फ एक किताब लेके गए थे एक हम, जिल्द एक लेकर गई थी जिल्द कोई? लेके गए अच्छा, थे। एक जिल्द में कितने पारे हैं? 6 पारे हैं। 6 पारे हैं, तो इस तरह से 6 जिल्दें होंगी इसकी, या 30 पारों की 6 जिल्दें हाँ। होंगी। और एक एक जिल्द मतलब कितनी वजनी है वो? एक जिल्द 5-6 केजी की वजन है। अब आपकी ख्वाहिश है कि इस कुरान मजीद को आप मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखें। हाँ। तो आपने क्या किसी से अप्रोच किया, किसी से राब्ता कायम किया इस सिलसिले में? राब्ता कायम किया है। हमारी ख्वाहिश है कि ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के जरिए से जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जी। इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के, मतलब किसी मिनिस्टर वगैरह से आपने रब्त किया, राब्ता कायम नहीं। किया? तो जाना चाहिए था आप, जैसे यहाँ पर है एमएलए हैं रिजवान अरशद साहब वगैरह, उनको जाके बताना चाहिए था आपको, ताकि आपका जो ये ख्वाहिश है जो कि कुरान मजीद को जो है मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखा जाए, तो जब तक कि आप यहाँ के सियासतदानों से आप जो है अप्रोच नहीं करेंगी तो आपको जरा मुश्किल तो होगी। क्योंकि आप जानती है ज़मीर अहमद खान साहब से आप राब्ता कायम कीजिए, मेरा ऐसा मशवरा है आपको। जी हाँ, ताकि वो लोग आपको गाइड कर सकें कि आप किस तरह से इसको वहाँ मदीने तक ले जा सकती हैं। ठीक है जी हाँ। और क्या आपके मंसूबे आइंदा, और क्या करना चाहती हैं? और भी आपने मुझे कुछ तस्वीरें भिजवाई थी कि जो आप कुछ फ्रेम्स बना रही हैं। हाँ, हम आयतें तहरीर करते हैं। आयतें तहरीर जैसे कि अपने घर पे आयतें सजाने का लोगों को शौक रहता है। जी जी हाँ। तो उस तरह की हम आयतें तैयार करते हैं। छोटी छोटी आयतें हाँ, छोटी छोटी कुरान की आयतें। वो कैसे करती हैं आप? वो भी लिखती हैं? हाँ, और उसके भी है, उसके पे कारीगरी भी होती है। आपने बताया था तबस्सुम कुछ गोल्ड की तागों से, थ्रेड से भी आप कारीगरी करती हैं? लीफ का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर आता है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड लीफ का इस्तेमाल करके, तो वो मुश्किल नहीं लगता है वो? क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए, बारीक थ्रेड रहते हैं वो थ्रेड नहीं, पेपर तरह आता है, पेपर की तरह आते हैं, बहुत पतला होता है। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से होते हैं वो। उसको क्या सुई में पुरो के करती हैं, कैसा करती हैं? नहीं, उसका काम ही अलग है। काम ही अलग है। अच्छा, वो काम भी यहाँ पर नहीं होता होगा कहीं पर भी? शायद आपने पहली बार शुरू किया है वो काम? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, रेजिंग आर्ट्स जानती हैं आप? रेजिंग आर्ट्स पर भी आजकल कुरानी आयतें लिखी जाती हैं। वो तो सब करते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग है, सब कहते हैं कि पहली बार देखा है। अच्छा, ये पहली बार देखा है। तो आपके पास उसकी तस्वीरें होगी तो मुझे भिजवाइएगा, ताकि मैं जो है हमारे टीवी चैनल पर डाल सकूं इंशाल्लाह। और क्या करना चाहती हैं बताइए? आगे क्या मंसूबे हैं आपके? स्कॉलर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम इस्लामिक स्कॉलर। हाँ, इस्लामिक स्कॉलर अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से करने का इरादा है? अभी तैयारी कर रहे हैं, मेरी बहन जो आलिमा है उसके पास हम सीख रहे हैं। जी जी। तभी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जाएंगे हम। जी इंशाल्लाह। तो बस आप तो बहुत छोटी हैं अभी, आपका क्या इरादा है मुस्तकबिल में करने का? इतना बड़ा काम आपने इतनी कम उम्र में किया है, बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ काम है बेटा। तो आप जो है इतनी छोटी सी है, तो आपको और कुछ मंसूबे बनाने चाहिए कि आप आगे इसको कैसे ले जाना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। जैसे सूरह यासीन है, अलग अलग छोटी छोटी जो है किताबें, इसकी बना सकती हैं आप। ये हम तैयार करते हैं, यासीन, आयतल कुर्सी, ये सारी हम वॉल छोटी छोटी किताबें जो इतनी ज्यादा वजनी भी ना हो, और लोग इसको जो है आसानी के साथ उसको खरीद भी सके, ताकि आपको इसका मेहनताना भी मिले। यानी ये ऐसा काम है कि अल्लाह के सिवा इसका अजर आपको कोई नहीं दे सकता। कितनी भी ज्यादा कीमत दे के इसको खरीदा जाए तो भी कोई खरीद नहीं सकता। तो
आप इसको अपने मुस्तकबिल में आप उसको अपना जो प्रोफेशन बना सकती हैं। वही बना रहे हैं हम वही लोग करना कि जैसे कि अब कोई बाहर से आया आयत देखे, जो उसको पढ़ ले, उसका सवाब भी जी, मिलेगा हाँ, और वो आयत भी हमारे घर में बरकती तौर पे रहेगी। हाँ, जी, तो हाँ। इस तरह से हम चीजें तैयार कर रहे हैं। काश कि मैं आज ले आती। मैंने लिखा एक कपड़े पर मेरे घर के लिए मैंने बनाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा मैंने लिखकर उसको जो है कलर से, तागे से नहीं, व्हाइट कपड़े पर कलर से पेंटिंग की है। तो ये कलर की पेंटिंग भी आप कर सकती हैं। देखिए कलर से जो है अगर लिखें, मुख्तलिफ किस्म के आजकल जो ऐसे वाटर प्रूफ कलर आते हैं जिससे आप उसको लिख सकती हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि आप उसका भी कर सकती हैं। हम लोग घर में फारिग नहीं रहते हैं, ऐसे ही चीजें बनाते रहते हैं। बहुत से आयतें ऐसी बनाई हुई हैं जो बहुत यूनिक है, और एक ऐसा आर्ट बनाया हुआ है इन्होंने कि वो कोई देखेगा तो ये हैरान हो जाएगा कि ऐसा भी आर्ट बन सकता है क्या। आपने लाना चाहिए था आज छोटी छोटी चीजें, मैंने कहा था ताकि मैं देख सकती। बड़ा बड़ा वजन है, इसीलिए नहीं हो तो पाया। मैं आपको कहूँ कि वाटर प्रूफ कलर के साथ भी जो है कपड़े पर जो है उसकी पेंटिंग कीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत सा लगता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। फिर उसको फ्रेम करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के क्या तारीफ करूं मैं आप लोगों की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आई और अच्छी मालूमात हमको दी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी सुरैया कि आप हमारे नाज़रीन को आज क्या पैगाम देना चाहेंगी, ख़ास तौर पर उन लड़कियों को जिनकी तालीम अधूरी रह गई है और मुस्तकबिल में कुछ करना चाहती हैं, तो आपका पैगाम उनको क्या होगा? मेरा पैगाम लोगों से ये है कि जो हमें तालीम मिली है, वो हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजलो करम से हुनर बहुत ज्यादा है। अगर औरत चाहे तो सही तरीके से कुछ करना चाहे तो कर सकती है, अल्लाह कामयाबी देगा। शुरुआत तो करें। जी हाँ, तो इस तरह से अगर हमें अपने अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसी के बारे में सोच के उसको अपनी कामयाबी बना सकते हैं। जी 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 जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। सुनिए, ये बताइए कि आपने कुरान को जो है सबको दिखाया और बहुत से लोगों ने आपके कुरान को देखा, तो यकीनन स्कूल में जहाँ पर भी लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया होगा, तो क्या कहना चाहती हैं वो लोग? जब भी हम इस कुरान की ज़ियारत हमारे आलिम दीन रखते हैं तो बहुत जगह हम लोग गए हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चों को ये दिखाया जाए इस तरह का कारनामा करके। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वापस आने के बाद में जो वहाँ के बच्चे होते हैं, जो औरतें होती हैं, वो हमें कॉल करती हैं। तो बच्चे बोलते हैं आप ही हमने इस आयत को लिखा है, इस आयत को हमने बनाने की कोशिश की है और इसका हमने तर्जुमा भी याद किया, तफसीर भी याद की। तो हमें इतनी खुशी होती है कि जी हाँ, वो हमारे काम से इतने खुश हैं कि वो भी कुछ करना चाहती हैं। हमें बहुत खुशी होती है। खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग उनकी भी मदद कर सकते हैं और उनके लिए क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं ताकि उन बच्चियों को भी आप सिखा सकें। इंशाल्लाह आप दोनों माहिर हैं इस काम में, तो अपनी महारत या अपना फंड जो है दूसरों को भी दीजिए ताकि जो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत सुनकर ये। जी हाँ, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त है आपका, वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ, तो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थी हमारी आज की दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मोहतरमा सुरैया कुरैशी और बीबी तबस्सुम साहिबा। इन दोनों बच्चियों ने जिस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया है वो आज हमारे लिए एक मजहबी सरमाया है और इस बात को मैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत के साथ कहना चाहूँगी कि अगर वो काम मेहनत, लगन, सब्र, इस्तक़लाल, अकीदत और रियाजत के साथ सर अंजाम दिया जाए, वो काम हमेशा ज़िंदा रहता है, याद रखा जाता है। इन दोनों की मेहनत रायगा नहीं जाएगी और इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी नेक ख्वाहिशात इन दोनों बहनों के साथ हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बेहतरीन नेमतों से मालामाल करे। इन दोनों बहनों की ख्वाहिश है कि इनका लिखा हुआ, कशीदाकारी के ज़रिए लिखा हुआ कुरान मजीद मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में रखा जाए और उसकी ज़ीनत बने। तो यहाँ पर मैं तमाम नाज़रीन से जो आज हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इन दोनों बच्चों की मदद कीजिए, इनके साथ ताउन कीजिए ताकि इनका लिखा हुआ, कशीदाकारी के ज़रिए लिखा हुआ कुरान मजीद मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम की ज़ीनत बन सके।
آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیحہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت بہت شکریہ.